2015, which was when patient had three miscarriages. First in 2015, when she conceived after a few months of her marriage. Second in 2016, and third in 2018. All were planned spontaneous pregnancy. Urine pregnancy tests done by the patient when 3 to 4 days overdue, which were positive all the time. She took folic acid, no history of fever, flu, rash, but patient had no viability scan done. According to her, she started bleeding at 1.5 months in first miscarriage, 2 months second time, and again at 1.5 months in third miscarriage. All were spontaneous expulsions. No medicine was given, no history of dilatation evacuation. In the second miscarriage, she had ultrasound after bleeding, which showed retained product of conception that also expelled spontaneously. No history of any excessive blood loss after any miscarriage, any fever, abnormal vaginal discharge. She did not get herself evaluated after all three miscarriages, never advised any blood thinning agents, any expensive blood investigation, no history of chronic illness, hypertension, cardiac illness, no history of increased appetite, thirst, or increased frequency of micturition, delayed wound healing, history of weight gain. There is history of weight gain according to patient. Her weight is increased from 50 kilogram to 60 kilogram in last 6 years. However, weight gain is not associated with infrequent cycle with acne and hirsutism. And there is no complaint of heat and cold intolerance, diarrhea and constipation, palpitation, no history of photosensitivity, small joint pain. Patient had menarche at 30 years of age with regular menstrual cycle. Previously, she bleeds 4 days every time she used 2 to 3 commercial pads per day, which are fully soaked. But for the past 2 years, duration of flow is decreased to 2 days. But she's using 2 to 3 commercial pads. There is no history of heavy menstrual bleeding with passage of clots. Bleeding between the menstrual flow, any painful bleeding, lower abdominal pain, vaginal discharge. Pap smear never taken, and couple never used any method of contraception. My patient is not able to conceive for the past 3 years. Both husband and wife living together, having regular coitus every 2 to 3 days. Coital act satisfactory with no significant pain, any postcoital bleeding, premature ejaculation, and patient is aware of fertile days of the cycle. Her husband is also of same age, 30 years of age, and educated till 8th class, AC mechanic by profession, Gutka addict. There is no hypertension, diabetes, any history of medication like steroid, antipsychotic, antihypertensive, childhood surgery of hernia, any trauma, or pelvic surgery or chemo radiotherapy. My patient did not give any history of TB contact or chronic cough with sputum and evening rise of temperature. No complaint of galactoria with headache, no history of hot flushes, small joint pain, and there is no perception of any abdominal mass. Family history is significant for delayed conception and anomalous babies in husband's family. No such history in patient's family. For this difficulty in conception, she consulted nearby private clinic where her ultrasound done, which is normal according to patient. Semen analysis was also done, which is also normal. No tubal patency test done. She was she did not take any oral medication for ovulation enhancement, but was given injectable during her menstrual cycle twice 6 months back. According to patient, she had mature eggs with that, but not conceived. She visited OPD in Jinnah Hospital for further workup and evaluation. Today is her second visit, and she has came with day 2 hormonal profile and semen analysis report. My patient has no chronic illness, no any surgery, and no history of blood transfusion. She does not use any medication on regular basis and not allergic to and then no allergic to any medicine known. Family history, there is no chronic illness, and her sleep and appetite is normal. Micturition and bowel habit are also normal, and no any addiction. Lives in a rented house, and all her needs are met with difficulty. On examination, young lady sitting comfortably with body mass index of 26 kilogram per meter एक मिनट square. फाइजा, जरा यहाँ पे रुक जाएं। आपने हॉट फ्लैशेस के साथ और किस किस चीज की हिस्ट्री ली थी? Madam, joint pain? हाँ, हॉट फ्लैशेस एंड जॉइंट पेन्स। ओके, जी madam. ठीक है, चले आगे चलें। On examination, young lady sitting comfortably with body mass index of 26 kilogram per meter square, blood pressure of 120 by 70 millimeter of mercury, pulse is 80 beats per minute, regular, good volume. She is not febrile, respiratory rate is 16 breath per minute.
There is no anemia, jaundice, clubbing, cyanosis, edema, dehydration. Accessible lymph nodes are not enlarged. Thyroid is not palpable. On examination, no excessive hair growth is observed. On chest examination, bilateral equal air entry with normal vesicular breathing. On CVS examination, both cardiac sounds audible, no added sound. Bilateral symmetrical breast with no tenderness or mass palpable. On abdominal examination or inspection, abdomen is flat, centrally placed inverted umbilicus, no stria, scar marks, visible pulsation, hernial orifices are intact. On superficial and deep palpation, no tenderness, any visceromegaly or mass palpable. Percussion note is resonant throughout. On local examination, vulva is normal looking. On speculum examination, cervix is healthy with no blood or any discharge seen. Pap smear taken. Visible vaginal walls healthy with rugi. On bimanual examination, cervix firm, regular, uterus 6 weeks size, anteverted, mobile, non-tender fornices are clear. ठीक। अब समराइज करें इसको। Madam, patient 30 years of age, husband is also of same age with no chronic illness in both para 0 plus 3, last miscarriage 3 years with complaint of recurrent miscarriage and secondary subfertility. Abdominal examination unremarkable. On local examination, cervix normal, normal size uterus, anteverted mobile uterus, fornices clear. आप इसको सिंपली भी कह सकते थे कि नो abnormality detected on vaginal pelvic examination. Okay, Okay, madam. how you will evaluate her now from now onward after knowing the history and doing detailed examination? आपकी इसकी further evaluation क्या होगी? Madam, I would like to have certain investigation. Madam, पूछूं investigations? जी जी बताइए। Madam, I want blood group with RH factor, complete blood count with date, in which hemoglobin gram per deciliter, total leukocyte and platelet count in cubic millimeter. Urine इसमें routine. जो पेशेंट की रिपोर्ट्स के जो थे रिजल्ट्स थे वो भी साथ साथ बता दीजिए। मैडम पेशेंट की जो लैब्स उसकी जो मेरे पास आई थी तो उसका एक रिसेंट सिमिलर एनालिसिस था, अल्ट्रासाउंड पेल्विस था और जो है ठीक है, बेसलाइन के रिजल्ट नहीं थे, जिसके हैं वो जी बता जी दें, अदरवाइज यू हैव टू नरेट ऑल द कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन प्लान। Okay, madam. Urine routine report in which I want biochemistry and microbiology. In biochemistry, protein, nitrites, ketones, and glucose. And in microbiology, RBCs, bacteria, cast and crystal. A random blood sugar, hepatitis B surface antigen, and anti-hepatitis C antibody. And I also want to know COVID PCR, her ultrasound pelvis, in which I want to know size of uterus, central endometrial thickness, endomyometrial junction, myometrial echo texture, and size of the ovaries or any pathology. मैडम इसका अल्ट्रासाउंड जो था ये रीसेंट अल्ट्रासाउंड था जिसमें नॉर्मल साइज यूट्रस था विद नो एनी नॉर्मेलिटी डिटेक्टेड एंड ओवरीज भी इसकी नॉर्मल साइज थी। Okay, now what the findings you want to know on the ultrasound? You just told me that इसमें सब endometrial क्या क्या आपने बताया था, सॉरी दोबारा से जरा रिपीट करें। मैडम यूट्राइन साइज ऑफ साइज, ठीक है, यूट्राइन साइज बताया और सेंट्रल एंडोमेट्रियल थिकनेस, ठीक है, endomyometrial junction, ठीक है, myometrial echo texture, size of ovary, and any pathology. ठीक है। By knowing all of this, what you want to evaluate? Because Madam, you know by your examination that uterus was of normal size and there was जी no मैडम adnexal pathology as detected on routine pelvic examination पे। जी मैडम I want to see for her for polycystic ovaries and is there any When did she have her last menstrual period? madam it was on 18th of August. Okay. I want to see I want to see ultrasound for polycystic ovaries or in uterus. I want to know is there any submucous fibroid, any polyp, or any suspicion of uterine anomaly. Or what Or you madam, want to know by endometrial myometrial junction and myometrial texture, ठीक है, उसमें एक तो presence or absence of fibroids जी मैडम and or endometrial polyps, but what you want to know by endometrial myometrial junction?
Madam, it is usually obscured in adenomyosis, but it is less likely in this patient. तो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो. हम्म क्योंकि देखो होता ये है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे तो कुछ आपको नहीं, पेल्विक पैथोलॉजी नहीं पता चली, बट एटलीस्ट आपको ओवेरियन पैथोलॉजी के बारे में खाली पेल्विक एग्जामिनेशन से इतना नहीं पता चल सकता। और सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फाइब्रॉइड या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पॉलिप में ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाय हर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। लेकिन ये है कि आपके पास बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए फॉर ईच एंड एवरी पैरामीटर विच यू वांट टू नो ऑन अल्ट्रासाउंड। Okay, madam. उसमें यूट्रन साइज इज अंडरस्टैंडेबल एंड दैट यू हैव ऑलरेडी evaluated on pelvic examination. एंडोमेट्रियल थिकनेस, व्हाई यू वांट टू नो इट। फिर उसके अलावा ओवेरियन चलो पीसीओ रूल आउट कर लिया, और फॉलिकल साइज। अब इसमें ये भी आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग दिस अल्ट्रासाउंड नाउ एट दिस टाइम, जो कि मेरा ख्याल है ये कितना डे बनता है इसका अभी। She had her last menstrual period on 18th and today लेकिन is मैडम 8th, it is 11th day। ठीक है, जी, ये 11th मेंस्ट्रुअल डे इसका बनता है। तो लेकिन उसमें मैडम ये, 6 वीक का अल्ट्रासाउंड था. जी जी, अल्ट्रासाउंड के ही मैं बात कर रही हूँ कि ये जो अल्ट्रासाउंड अगर आपने आज कराया तो आज 11th डे है। अगर ये कोई 4-5 दिन पहले हुआ है तो वो प्रोबेबली बाकी चीजों को इतना प्रॉपरली एवेलुएट नहीं कर सकेगा और आपको उससे कोई फेवरेबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसको भी हमने टाइम करना होता है अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, के उसमें किस डे पे कराने का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। और दूसरा ये कि मायोमेट्रियल टेक्सचर से क्या मुराद है आपकी, क्योंकि फाइब्रोइड का होना या ना होना या एडिनोमायोसिस की फीचर्स होना या ना होना, ये एक अलहदा चीज है जो आप क्लियरली बताते हो कि मैंने इसमें फाइब्रोइड देखना है या एडिनोमायोसिस को देखना है। लेकिन मायोमेट्रियल टेक्सचर थोड़ी सी एक ब्रॉड वो टर्म है जिसमें बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं। तो ओके इसलिए मैडम. इसको स्पेसिफाई करें। एंड यू डोंट नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन, जिसकी रिलेटिव सिग्निफिकेंस इज व्हेन द पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव एडिनोमायोसिस, या अल्ट्रासाउंड पे अगर एडिनोमायोसिस आ गया तो फिर उसकी रेलिवेंस बन जाएगी। तो अदरवाइज रूटीन के अल्ट्रासाउंड पे आप ये नहीं करवाते। ठीक है, ओके मैडम. तो ओके मैडम. ठीक है, बाकी बाकी चीजें समझ में आने वाली बात है कि आपने बाकी सारी चीजें देखनी है, क्योंकि यू आर एवेलुएटिंग टू इश्यूज एट सेम टाइम, एक सब फर्टिलिटी का भी और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का भी, यस मैडम. इन दो चीजों को। तो इसमें कुछ वजहें जो सब फर्टिलिटी की वजह बन सकती हैं वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की भी वजह बन सकती हैं। यस मैडम. चलें जी, और व्हाट एल्स, और इसमें मैडम क्या टेस्ट करने की जरूरत है। मैडम डे 2 हार्मोनल प्रोफाइल इंक्लूडिंग सीरम एफएसएच, एलएच, टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन. ये पेशेंट का हुआ था रिसेंट. एफएसएच और एलएच और बाकी आपने बताया था टीएसएच लेवल्स जी, एंड प्रोलैक्टिन. एंड प्रोलैक्टिन। तो यस मैडम, ये रिसेंट हुआ था इसका डे पेशेंट टू का. पे करवाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। सॉरी मैडम. इसका डे टू पे करवाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। या चले, मेरा ख्याल है पहले आप कंप्लीट कर लें इन्वेस्टिगेशन, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके. आप और इसमें क्या करवाओगे। ओके मैडम, इसका रिजल्ट बता दूं. हाँ जी, चले बता दें। मैडम इसका एफएसएच जो था रिसेंट वो 8.5 था. हम्म और हर एलएच वाज नॉट डन एंड थायराइड लिमिटिंग हार्मोन वाज 1.9 हम्म एंड प्रोलैक्टिन 11.4 नैनोग्राम पर एमएल. 0.4, 11.4. 11.4, अच्छा ठीक है। Madam, I also want mid-luteal progesterone हम्म and semen analysis. मिड ल्यूटियल प्रोजेस्ट्रॉन ऑन व्हाट डे, इसको डे स्पेसिफाई करना होता है Madam, patient is अकॉर्डिंग टू द having मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ। हम्म 30 days cycle, 28 to 30 days cycle. तो on day 21st or 23rd जो है we will go for it. ओके, व्हाट एल्स। मैडम semen हस्बैंड analysis जो एनालिसिस भी हो गया। वो उसकी रिपोर्ट बता दूं. जी जी। मैडम 16 अगस्त का है वो. वॉल्यूम वॉज 1 ml. टोटल काउंट 50 हम्म million. मोटाइल वर 50%. नॉर्मल फॉर्म 90%. ठीक है, सो इट्स नॉर्मल। ऑलमोस्ट नॉर्मल. वॉल्यूम 1 ml. ठीक है। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, एनी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट इफ डन पेशेंट का नहीं हुआ था. हम्म स्टेरोसल्फिंजोग्राम नहीं था. ठीक है।
Pap smear report, हम्म prescription of injectable she has given, an ultrasound done after that, वो भी नहीं था. हम्म एंड मैडम अब इसमें मुझे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि मैं इसके अलावा जिसके रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए एपीएलएस के वर्कअप पे जाऊं. अच्छा, ठीक है। इसमें हम पहले जरा इन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस कर लें, कमिंग बैक टू द हार्मोन प्रोफाइल विच यू डिड ऑन सेकेंड डे ऑफ द साइकिल। ओके मैडम. तो इसमें उसकी रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड डे ऑफ साइकिल, आर यू सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट्स ऑफ ऑल दिस? नो मैडम. क्या मैडम बोला? एक तो इसके साथ इन्होंने एफएसएच के साथ एलएच नहीं हुआ है एंड द सेकंड इज के इट इज 8.5 ऑन द हायर साइड सो आई वांट टू रिपीट इट. ठीक है। एफएसएच जो है वो हाउ इट इज अफेक्टेड इन ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? Madam, in follicular phase, it is in the early follicular phase, it is on the lower side, and just before ovulation, it is हम्म increased along with LH, which causes estrogen surge, and then after ovulation, estrogen again inhibit FSH, so it is again at the lower level in luteal phase. ओके, नाउ व्हाट आपने जो इसको एफएसएच एलएच को करवाया, इसमें आपका कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था? Madam, my objective was कि although patient has ovulatory cycles, but in order to check her hypothalamic pituitary ovarian axis, हम्म this FSH and LH. hypothalamic pituitary ovarian axis. तो इसमें if the patient is having normal menstrual cycle, is it not sufficient to tell you about the working and जो है वो उसमें functional capacity of the hypothalamic pituitary ovarian axis? Normal Madam, cycle है उस Regular menstrual cycle can also be anovulatory in 10 to 15% cases. That's why we will go for second day profile. हम्म तो ओवुलेटरी साइकिल्स में एफ एस एच एल एच की रेशो, मतलब रेशो इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस आइसोलेटेड एफ एस एच रिपोर्ट। क्योंकि Yes, देखो madam. इसमें दो पर्पजेज होते हैं एफ एस एच एल एच को करवाने के, रादर एफ एस एच की अगर हम अकेले की बात करें तो एक तो ओवेरियन रिजर्व, और दूसरा रेशो जो है वो दैट बेसिकली टेल यू अबाउट एनी प्रॉब्लम विद द ओवेरियन फंक्शंस लाइक पीसीओ, कि जिसमें ये रेशो डिस्टर्ब हो जाती है और इसमें हाइपर जो है वो इसमें एल एच लेवल ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज इफ यू वांट टू एवेलुएट द ओवेरियन रिजर्व अलोन, अगर उसमें वो वाली चीज सिर्फ है, पीसीओ वाला फैक्टर नहीं है, तो फिर तो दूसरे भी टेस्ट आपके पास होते हैं। एंड एज रिगार्ड टू असेसमेंट द ओवुलेशन यू हैव अदर पैरामीटर्स इस एफ एस एच एल एच रेशो के अलावा भी, क्योंकि इसमें Okay, एल एच madam. नहीं हुआ। एफ एस एच यू थिंक दैट दिस इज ऑन द हायर साइड विच आई एग्री विद, ये एज रिगार्ड टू द सेकेंड ए ऑफ द साइकिल ये थोड़ा सा हायर साइड पे चला जाता है। सो इट वुड नीड द इसमें इसको अपना रिपीट करने की इसमें जरूरत है। तो Along with इसमें LH. क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्या करवाना चाहते हैं। मैं अगर ये बताऊं कि इसमें पीसीओ की रेलिवेंस के हिसाब से इसकी ज्यादा बनेगी, बिकॉज द पेशेंट इज हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेटरी जो साइकिल्स हैं उनकी असेसमेंट आप बाकी तरीकों से भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर डूइंग सो मैनी अदर थिंग्स टू, जैसे मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन आप करवा रहे हैं, उसकी भी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, दिस यू विल टेल अस कि उसमें आप वो क्यों करवा रहे हैं। दिस इज अगेन फॉर द असेसमेंट ऑफ ओवुलेशन, ऐसा ही है ना? Yes, madam. तो इसमें खाली एफएसएच के बेस पे आप ये एन ओवुलेटरी साइकिल्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो खाली एफएसएच आपको ये नहीं बताएगा कि ये ओवुलेटरी है या एन ओवुलेटरी साइकिल्स हैं, वो हम बाकी चीजों Okay. से असेस करते हैं। अब secondly coming to the TSH level which is 1.9, do you think it is normal and why you have done it? Patient is not Madam, giving any sign symptoms of hypothyroidism or hyperthyroidism. madam, to rule out subclinical hypothyroidism, if it is Hmm. on higher side more than or equal to 3, then it could be due to subclinical hypothyroidism, and different studies say that higher TSH level have a negative impact on reproductive outcomes. Hmm. तो आपके ख्याल में ये खाली टीएसएच काफी था या हमें कंप्लीट थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए थे इंक्लूडिंग T3 एंड T4? मैडम कंप्लीट करवाने चाहिए. क्यों? इसलिए कि मे बी T3 T4 में कोई नॉर्मेलिटी हो. मसलन कैसी?
as she is a case of subfertility as well as of recurrent pregnancy losses. So you will go for the complete thyroid profile including T3 and T4. क्योंकि होता Okay, ये madam. है कि initially when the levels of thyroxine are decreased due to decreased production from the thyroid gland, so there is a compensatory response जिसमें थायराइड TSH लेवल जो हैं वो थोड़े से रेज होना शुरू हो जाते हैं, सॉरी इसका ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो Okay. इसमें कॉम्पनसेटरी इनिशियल फेजेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में TSH लेवल अमूमन नॉर्मली आते हैं, लेकिन Okay, madam. इस पेशेंट की अगर आप हिस्ट्री पे जाएं कि इसमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी है और इसमें सब फर्टिलिटी भी है, जिसके पीछे इन दोनों के पीछे वजह हाइपोथायराइडिज्म बन सकती है। So though the जी मैडम. patient is not giving any sign and symptoms of hypothyroidism, but subclinical hypothyroidism can be a reason for both of these things. तो उसमें उसको असेस करने के लिए खाली TSH का जानना काफी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जब आप इसका डिटेल में करवाओ तो इसके T4 लेवल जो थायरोक्सिन है, T4 लेवल जो है वो इसके 50% नॉर्मल जो इसके मीडियन फिगर बनती है उससे नीचे हों, that will automatically tell you that thyroxine is produced in little amount while the TSH may be in the normal range. तो इसलिए फिर उसको वो करवाना जरूरी होता है। T4 के लेवल इसमें फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके इसमें फिर मैडम. हम थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे, बट अदरवाइज आई एग्री विथ के इसमें थायराइड प्रोफाइल बिल्कुल होना चाहिए। अब प्रोलैक्टिन लेवल्स 11.4 है, ये ठीक है? जी मैडम. अच्छा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन व्हिच यू डिड इन दिस केस। ठीक, तो इसमें जो मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन आपने करवाया, इसकी इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, एंड डू यू थिंक दैट अ सिंगल रिपोर्ट विल टेल यू अबाउट द ओवुलेशन? मैडम, if it is more than 10 nanogram per ml or more आई एम than नॉट 30 nano. आस्किंग अबाउट द लेवल्स, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लेवल कि उसके एक्चुअल लेवल क्या है, मे बी इट इज इन द नॉर्मल रेंज उस साइकिल में जिसने आपने करवा लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक सिंगल साइकिल में ये करवाने से आपको अनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? मैडम, हाँ, ये प्रोग्नोसिस नहीं बताएगा कि वेदर हर नेक्स्ट साइकिल विल बी ओवुलेटरी और एनोवुलेटरी, बट ये बताएगा कि यस This दिस will tell साइकिल you वाज. about this will tell you about the ovulation in the current cycle। जी और मैडम. ऐसा हमेशा ऐसा अक्सर होता है कि कोई 2-4 साइकिल ओवुलेटरी साइकिल्स के बाद कोई एक एनओवुलेटरी साइकिल भी हो सकता है। सो प्रोबेबली अगर ये ठीक लेवल्स आ जाते हैं तो उसमें ओवुलेशन इस साइकिल में तो बता दी, लेकिन ये बाकी साइकिल्स के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। और जो भी हम ओवुलेशन से रिलेटेड हम इसलिए जब हम इसको करते हैं तो कम से कम कंसेक्टिव 3 साइकिल्स के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि एवरी साइकिल इज ओवुलेटरी साइकिल। क्योंकि करंट साइकिल में ओवुलेशन को देखने के लिए देयर आर अदर मीन्स एज वेल, जैसे हम अल्ट्रासाउंड असेसमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा स्पेशल किट्स होती हैं जो हमें ओवुलेशन के बारे में बताती हैं। बेजल बॉडी टेम्परेचर है, सर्वाइकल म्यूकस टेस्टिंग है, दीज आर ऑल अदर टेस्ट विच आर दो नॉट सो कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल ज़्यादा कन्वीनियंट है टू डू, लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो इस करंट साइकिल के लिए होगी, इस ये बाकी हमें बाकी साइकिल्स के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब हम आते हैं ट्यूबल पेटेंसी पे। इसमें इसकी डीएनसी कभी भी नहीं हुई एंड ऑल द टाइम शी कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली। यस मैडम. तो उस आपके ख्याल में फिर भी यू नीड टू हैव अ ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट यस मैडम. despite the fact that she did not have any problem as related with the vaginal discharge or surgery or something like that। इसमें कोई भी पिछले 3 साल में इसका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। Madam, but infertility is of now 3 years duration, हाँ, and there can be subclinical infection also. So that's why I will go for tubal patency test. ये इसका बहुत अच्छा जवाब नहीं है वैसे, क्योंकि देखो इसकी अगर सेकंड और थर्ड आप प्रेगनेंसी का इंटरवल देखो तो वो भी 2 साल का है। जी मैडम. अगर जो उससे पहले कंजेक्टिवली 1 ईयर के उस पे हुआ और वो सारी स्पॉन्टेनियस उसकी कंसेप्शन थी, एंड शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ वेट गेन एज वेल, जो कि, और दूसरा आपने रिड्यूस ब्लड फ्लो बताया है इन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स इन द रेगुलर अकरिंग साइकिल।
जी तो ये मैडम। सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि प्रोबेबली देयर माइट बी सम एलिमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ठीक है, इसमें ओके। क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे आप कुछ चीजें सॉर्ट आउट करते हो जिससे वो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। बट यू हैव टू थिंक ऑन दैट लाइन, क्योंकि बाकी आपने टीएसएच वगैरह ये सारी चीजें करवा ली विच मे बी अनदर रीजन, बट ऑल्सो यू हैव टू आस्क अबाउट दिस डाइटरी इनटेक या फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि बीएमआई जो इसका 26 है, 26 ही था ना इसका जी बीएमआई, जी मैडम। तो इज इट नॉर्मल फॉर हर ऑल द प्रॉब्लम जो सब फर्टिलिटी और इसके जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस है? No, madam, it is, she is in overweight class, and by reducing weight of 5 to 10%, she can have better ovarian response. हम्म, तो इसलिए आप उसको जो है आपको इसकी जो ट्यूबल पेटेंसी है खास तौर पे जिसमें फर्स्ट टाइम प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या पहले से कोई ऐसा अगर प्रॉब्लम पेशेंट को हुआ, सिजेरियन सेक्शन है, माइमेक्टमी है, या उसकी रिपीटेड डीएनसीज हुई हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली जस्टिफाई कर सकते हो। एक ऐसा पेशेंट जिसमें कोई कभी उसको ट्रीटमेंट दे के प्रेग्नेंट नहीं वो हुई और उसमें कोई डीएनसी की हिस्ट्री नहीं है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं है, उसमें ट्यूबल पेटेंसी दो इज वन ऑफ द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस फॉर वर्कअप ऑफ इनफर्टिलिटी, but still it will be a little bit difficult to justify the tubal patency test in this case, क्योंकि इसमें जो ट्यूबल पेटेंसी के जो रूटीन मेथड्स हैं दीज आर ऑल इंटरवेंशनल मेथड्स, यानी हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी है या लेप्रोस्कोपी है, ये सारे इंटरवेंशनल हैं। और इसके अलावा आप जो इसके दूसरे तरीकों से जो आप कर सकते हो, सोनोहिस्टोग्राफी है, वो एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता, वो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और आप इसको जस्टिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें दो पेशेंट इज नॉट गिविंग दैट हिस्ट्री, लेकिन इसमें जो है वो हम जस्ट टू कंप्लीट द वर्कअप ऑफ सब फर्टिलिटी विच इज फॉर लास्ट 3 इयर्स, आप इसमें इसको करवाना चाहेंगी ताकि उसमें अगर कोई ऐसा मसला है तो उसमें आप उसके मुताबिक ट्रीटमेंट कर सकें। लेकिन बहुत स्ट्रांगली जस्टिफिकेशन इसकी फिर भी नहीं होती, एंड देयर इज अ स्पेस इन दिस केस कम अज कम जिसमें आप पहले ट्रायल ऑफ मेडिसिन दे के और फिर उसको देख सकते हो। एंड इफ द पेशेंट इज नॉट कंसीविंग ऑन दिस ट्रायल ऑफ मेडिसिन, तो फिर आप उसमें सेकंड स्टेज पे जाके कहीं ट्यूबल पेटेंसी वाली बात इसमें कर सकते हैं। तो Okay, इसमें madam. इतना कुछ स्पेस होगा इस केस में कि आप इसको इस तरह से केस को ले जा सको। तो अब अब ये सर्वाइकल स्मीयर आपने हस्बैंड सीमेन एनालिसिस वाज ओके। ना बेस्ड ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस जो आपके पास अभी तक हैं और आपके पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन फाइंडिंग, आपने अब इसको कैसे लेके चलना है केस को आगे? मैडम ये सारा समझ आ गया, लेकिन एफएसएच और एलएच की सेकंड डे पे बता दें कि वो सेकंड डे पे ही क्यों करवाते हैं? अच्छा, इसमें इनसे भी खैर मैंने सवाल पूछा था, फायजा से भी। इसमें सेकंड डे में करवाने की अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी कुछ अगर आप रिकॉल कर सकें, तो इसमें एफएसएच और एलएच की जो पीक आती है वो डिफरेंट फेजेस पे आती है। इनिशियली जो फॉलिकल रिक्रूटमेंट होती है दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, यानी जो नया फॉलिकल बनना शुरू होता है, जो मैच्योर होना शुरू होता है, वो फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से ही रिक्रूट होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच। अब एफएसएच लेवल ग्रेजुअली रेस करते हैं और वो पीक पे पहुंचते हैं इन द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस टाइम पे एलएच रेशो जो है वो अपने बेस लाइन पे होती है, क्योंकि एलएच का भी काम नहीं है। एलएच तकरीबन मिड फॉलिकुलर फेज पे जाके कहीं ऊपर जाना शुरू होता है, एंड दैट रीचेस एट इट्स पीक इन द ओवुलेटरी फेज, एंड इन कॉम्बिनेशन विद एलएच पीक जो है इन कॉम्बिनेशन विद एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन पीक रिलीजेस द ओवम फ्रॉम द ओवरी, जो एक फॉलिकल मैच्योर हो चुका होता है वो उसको रिलीज करता है। Then gradually the estrogen comes down, FSH comes down, or LH relatively is on higher side as compared to the FSH उसमें luteal phase में, और उसके अंडर इफेक्ट जो है वो ल्यूटिनाइजिंग ये जो है ग्रेफियन ये जो ल्यूटियल वो है कॉर्पस ल्यूटियम है, दैट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रॉन। और एफएसएच के अंडर जो फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल मैच्योर हो रहा है और उसके अंडर इफेक्ट ये फॉलिकल जो है, जो डेवलपिंग फॉलिकल है, मैच्योरिंग फॉलिकल है, दैट विल प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन।
तो इसलिए हम डे 2 पे करवाते हैं कि इसमें LH बिल्कुल अपने नॉर्मल बेसलाइन लेवल पे होता है, FSH भी ऑलमोस्ट बेसलाइन लेवल पे होता है, एंड वी नो एग्जैक्टली द रेशियो ऑफ FSH टू LH। ये नॉर्मली इसका बेसलाइन LH ज्यादा है या नहीं है, इसी वजह से इस रेशियो को ज्यादातर किया जाता है फॉर एनी ओवेरियन डिसफंक्शन लाइक इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज, क्योंकि उसमें बेसलाइन LH लेवल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ FSH एट द स्टार्ट ऑफ द फॉलिकुलर फेज। अगर ये थोड़ा सा आगे जाके आप करवाओ तो उसमें तो फिर नॉर्मली FSH लेवल भी चेंज हो रहा है, उसमें तो वो ज्यादा बढ़ेगा FSH, और वो आपको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दे सकता है। LH लेवल भी रेज हो रहा है तो वो भी उससे भी रॉन्गली इंटरप्रेट वो हो सकती है इंटरप्रिटेशन फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो वो रेशियो चेंज होती रहती है, ऑल्टर होती रहती है इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल। तो बेसलाइन लेवल्स आप हमेशा सेकंड या थर्ड डे पे ही असेस करते हो। लेकिन अगर मकसद सिर्फ खाली ओवेरियन रिजर्व को देखना है एंड देयर आर नो क्लिनिकल स्टिग्मास एंड हिस्ट्री पॉइंट्स फेवरिंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो उस सूरत में तो फिर बेहतर तो AMH है, एंटी मलेरियन हार्मोन, जो कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज नहीं होता। लेकिन FSH LH की रेशियो चेंज होती रहती है, उनकी अपनी आइसोलेटेड लेवल जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। इज इट क्लियर? जी मैडम। मैम फिर हम EMH करवा सकते हैं नहीं इन्वेस्टिगेशन देखो में? इसमें तो और तो मैम प्रोलेक्टिन मैंने जो सवाल इनसे पूछा था कि FSH LH करवाने का मकसद क्या है, FSH करवाने का मकसद होता है ओवेरियन रिजर्व को देखना, और अगर ओवेरियन रिजर्व को देखना हो तो खाली FSH ही करवाया जाता है ऑन द डे 2 और 3। उसमें फिर LH रेशो नहीं, LH रेशो और FSH रेशो हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए ज्यादातर करते हैं। और लेकिन ये है कि अगर मकसद हमारा सिर्फ ओवेरियन रिजर्व को ही देखना है, और उसकी डेफिनेटली आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मल हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ओवेरियन रिजर्व को आप क्यों असेस करना चाह रहे हो, तो उसमें भी एक जस्टिफिकेशन पॉइंट होना चाहिए। लेकिन इस केस में FSH LH रेशो को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हमने इसमें PCO की को जो है वो हमने असेस करना है। लेकिन अगर ओवेरियन रिजर्व को देखना हो तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स इंक्लूडिंग FSH और AMH, एंट्रल फॉलिकल काउंट ऑन द डे 11 और 12 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या सीरम इनहिबिन भी होती है, एंड सीरम एस्ट्रोजन एज वेल। अब सीरम एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस के हिसाब से जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो जब एस्ट्रोजन ज्यादा बन रही होगी डेफिनेटली लेवल ज्यादा आएंगे, ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा आएंगे। तो जो हार्मोन्स चेंज करते हैं अपने आप को ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल, उनको फिर खास डे पे ही आपने करवाना होता है। उसको जैसे आप सीरम प्रोजेस्टेरोन करवाते हैं तो वो डे 21 पे ही करवाते हैं, वो डे 2 पे तो नहीं करवा रहे होते, इसलिए कि आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन का पीक ही 21 डे पे आएगा, और ये तब आएगा पीक या वो नॉर्मल रेंज पे तब आप डिटेक्ट कर सकोगे अगर ये ओवुलेशन हुई होगी। तो अगर ओवुलेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम तो बना ही नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो वो सीरम प्रोजेस्टेरोन कैसे बनाएगा? So that's why you do all these tests on the different days of cycle. AMH वो हार्मोन है जो कि किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी डे पे किसी भी फेज में किया जा सकता है, और उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। गोइंग बैक टू द मैम केस नाउ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक वेलकम। छोटा सा क्वेश्चन था मैम, अगर साइकिल रेगुलर है तो हमें पता तो चल रहा है कि इसका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस नॉर्मल है, तो फिर हम FSH LH ना कराएं या कराएं फिर भी? नहीं देखो, जैसे इसमें FSH LH करवाने की इसमें वजह थी क्योंकि इसमें हिस्ट्री ऑफ वेट गेन है, सब फर्टिलिटी है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, और हाइपोमेनोरिया वाला भी एलिमेंट इसमें ऐड हो गया फॉर फ्यू मंथ्स। तो ये सारे क्लिनिकल मार्कर्स हैं फॉर प्रोबेबली फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो आपने उस रेशो को देखना है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो LH की रेशो LH ज्यादा हो जाता है, FSH जी LH मैम। रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसमें तो करवाने का एक मकसद है। जी मैम। अगर ये हिस्ट्री में ये चीजें ना होती, वेट गेन ना होता, उसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब चीजें होती, तो उसमें करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये जो इसमें सारी चीजें जो बाकी, अगर हम सिर्फ बाकी चीजों को देखें
तो और इसमें वेट गेन ना भी होता इवन देन भी, फिर इसमें हमें थायराइड फंक्शन तो फिर भी हमने करवाने हैं, लेकिन एफएसएच एलएच रेशियो करवाने की कोई वजह होनी चाहिए। और ओवेरियन मैम जी पीसीओएस की वजह से तो कोई वजह सीरम टेस्टोस मैम जी पीसीओएस की वजह से तो सीरम टेस्टोस्टेरोन भी करवाना चाहिए फिर। नहीं, इसमें कोई एक्ने या हिर्सुटिज्म वाला प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा एलएच रेज्ड होगा और एलएच का भी एक एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट होता है। और इसमें क्योंकि देखो एलएच जब ज्यादा होगा तो उसमें अब अगर हम पूरा उसके एंडोक्राइनोलॉजी पे चले जाएं तो इसमें जो प्रोजेस्टेरोन के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो दीज आर एंड्रोजेनिक इन नेचर, नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोजेस्टेरोन जो नेचुरली अकरिंग होता है उसके बहुत ज्यादा रिमार्केबल ये इफेक्ट नहीं होते, बट स्टिल एलएच जो ज्यादा अगर पीक पे हो, एलएच लेवल जब ज्यादा होते हैं लाइक इन पीसीओ, तो उसमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म भी होता है। बट टेस्टोस्टेरोन लेवल हम क्लिनिकली उसी वक्त करवाते हैं जब क्लियर कट साइंस हो हाइपर एंड्रोजेनिज्म। अब ये वाला जो एलएच ज्यादा है ये एक्नी हिर्सुटिज्म नहीं करता, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। बट इफ द सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल विल बी रेज्ड तो वो एक्नी और हिर्सुटिज्म को करेगा, क्योंकि वो एंड ऑर्गन जो हेयर फॉलिकल्स हैं या जो उसके बाकी सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये उन सबको करता है। और द हेयर फॉल, ये सारी चीजें हैं, तीनों चीजें जो अगर पेशेंट में हो तो फिर आप सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल की असेसमेंट करोगे जरूर से। चलें ओके जी। मैम। मैम अच्छा थैंक मैम, यू अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, हमारा केस अस्सलाम तो वालेकुम मैम। कंप्लीट मैम रह मैंने गया, हम पूछना केस था, को कंप्लीट कर लें। सॉरी मैम। अच्छा मैम, एचएसजी जो है वो हम यूट्राइन एनोमली देखने के लिए भी तो हम करवा सकते हैं ना? What uterine anomaly lead to first trimester miscarriages? मैम सेप्टेट यूट्रस जैसे होता है, हम्म, तो वो फर्स्ट तो ट्राइमेस्टर मैम में उसमें हम ये इसका तीनों जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 8 वीक्स तक गई है प्रेगनेंसी। तो मैम उसमें फिर यानी कि एचएसजी के लिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो जो टाइम ऑफ एबॉर्शन होता है ना, उसके हिसाब से फिर आपको पता चलता है कि इसमें क्या रीजन, प्रोबेबल रीजन क्या हो सकती है। अब इसमें 3 एबॉर्शंस हो गए और उसमें द बेबी फेल टू ग्रो, यानी उसमें अपेरेंटली जो, ये तो पेशेंट ने बात बताई ना, लेकिन जो हम उसमें देख सकते हैं वो जो असेस कर सकते हैं वो ये कि प्रोबेबली इसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी आई ही नहीं थी। ये सिर्फ एक प्रेगनेंसी में है कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी आई और फिर उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन फीटल कार्डिक एक्टिविटी का ना आना तो जो है वो इंडिकेट करता है कि देयर इज सम अदर रीजन बिहाइंड। तो इसलिए जो है वो इसमें हम डायरेक्ट हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी को भी उस तरीके से शायद बहुत जस्टिफाई करना मुश्किल हो, अनलेस कि आप एग्जामिनर को ये बता दें कि ये एनोमली है जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन करती है। चलें ठीक जी, है अब मैम। नाउ और कमिंग मैम बैक टू द, एफएसएच अगर 8 है तो उसको रिपीट कब करवाएंगे? इसको फिर रिपीट करवाएंगे नेक्स्ट साइकिल पे, भी फौरी तौर पे नहीं तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि ठीक एफएसएच है, लेवल थैंक यू। ऑन सेकंड डे ऑफ साइकिल 8 अगर है तो वो रेस्ड है। क्योंकि ये इतना रेस जो है वो, चाहे हम इसकी नॉर्मल रेंज 20 तक लेके जाते हैं, लेकिन एक यंग एज में जो पीक रिप्रोडक्टिव एज पे जो फीमेल है उसमें एफएसएच लेवल्स आल्सो टेंड टू रिमेन मैक्सिमम विद इन द मीडियन फिगर, जो कि तकरीबन 8 से 10, और ये भी उस वक्त जब वो तकरीबन एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज होगा। सो एट द स्टार्ट ऑफ फॉलिकुलर फेज दीज लेवल्स आर रेज्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम प्लीज छोटी सी एक हम बात आते बता हैं दें। केस की तरफ वापस। जी फाइजा। मैम मैडम, हाँ जी, should पहले I, हम केस को मैडम, कंप्लीट कर दें फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वरना केस वहीं का वहीं रह जाएगा। मैडम इसमें कंफ्यूजन है मुझे ये हो रही थी कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन क्लियर कट हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की भी जो है वो डायग्नोसिस लाइक शी इज हैविंग रेगुलर साइकिल, कोई हिर्सुटिज्म एक्ने इसको नहीं है और हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी नहीं है। तो अगर हम रॉटरडम क्राइटेरिया पे जाएं तो कोई 2 क्राइटेरिया तो उसके फुलफिल नहीं हो रहे, और हैविंग एफएसएच ऑफ अच्छा, 8.5 एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, तो फिर मैं इसके डिफरेंशियल्स यानी सिर्फ सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के अलग बनाऊं, रिकरेंट मिसकैरेज के अलग, या दोनों को नहीं साथ लेके इसमें चलूं? देखो जो है ना, इसमें अगर आप क्लिनिकल पैरामीटर की बात करते हो तो क्या इसमें क्लियर कट जो होते हैं क्लिनिकल पैरामीटर क्या वो हर केस में मौजूद होते हैं?
अब क्लिनिकल पैरामीटर को हम रिव्यू कर लेते हैं. शी इज सब फर्टाइल फॉर लास्ट 3 years. She had recurrent pregnancy losses for in the last मतलब जो है in the first 3 years after marriage, 3 नहीं बल्कि 4 years after marriage. और इसके अलावा जो है वो इसका हिस्ट्री ऑफ वेट गेन है, हिस्ट्री ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स एज यू टोल्ड मी. जाहिर है कि आपकी अपनी हिस्ट्री पॉइंट है, तो ये सारी चीजें उसमें हैं. तो उस सूरत में आप व्हाट एल्स यू नीड, ये देखो एक कंफर्म डायग्नोसिस तो है नहीं. ये कंफर्म डायग्नोसिस तो हम करते हैं फिर ऑन सर्टन क्लिनिक ऑन सर्टन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें डेफिनेटली वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वुड बी डे 11 और 12 अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये रेगुलर 30 डेज का साइकिल है, तो वो वाला होगा. और उसके अलावा इसकी FSH-LH रेशो होगी जो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है. तो उसमें आप फिर कैसे इसको डायग्नोस्टिक लिस्ट में से कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर पेशेंट के पास 2-3 पैरामीटर्स भी बन जाते हैं, एंड एज यू नो कि नॉर्मल जो एबॉर्शन मतलब जो स्पोरेडिक एबॉर्शंस का रिस्क होता है इन अ नॉर्मल लो रिस्क पॉपुलेशन दैट इज अप टू 15%, बट व्हेन द पेशेंट इज हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो उस सूरत में रिस्क इसका दैट कैन गो हायर एज अप टू 40%, 35 to 40% तक चला जाता. तो ये भी एक क्लिनिकल पैरामीटर बन गया. पॉलीसिस्टिक ओवरीज लीड टू सब फर्टिलिटी, तो ये भी एक क्लिनिकल पैरामीटर बन गया. ठीक है, तो इसमें ठीक है, आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करो. ये तो आपके सवाल का जवाब था. नहीं मैडम, हाँ जी मैडम लग रहा मुझे भी ओवुलेटरी डिसफंक्शन ही है, लेकिन ये कि स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन के जैसे पॉइंट्स होते हैं लाइक कुछ चीजें होती हैं जो क्लियर कट होती हैं. अब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या सब फर्टिलिटी तो बहुत सारे केसेस में इडियोपैथिक भी होती है जिसमें हमें कोई वजह नहीं पता चलती. तो मकसद ये होता है कि हम पेशेंट की हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन से कोई ना कोई डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करें, विच इज नॉट इन ऑल द केसेस पॉसिबल. जो भी आपका प्रोबेबल डायग्नोसिस बनता है, कंफर्म डायग्नोसिस तो हर केस में पॉसिबल नहीं होता, तो जो प्रोबेबल पॉसिबिलिटी बनती है एटलीस्ट आप उसको तो डिस्कस कर सकते हो. ओके मैडम, ठीक है जी. So madam, my differential in this case will be first it is ovulatory dysfunction due to polycystic ovarian syndrome. It can be due to thyroid dysfunction. And my second differential अच्छा मैडम, मैंने इसमें जो है वो differential secondary subfertility और recurrent miscarriages के अलग अलग करके बनाए थे. ठीक है, आप उसी तरह से आप बता दो. देखो अब जब दो प्रॉब्लम्स होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उन दोनों प्रॉब्लम की वजह एक ही हो. बाद दफा अलग भी कोई वजह हो सकती है, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि कोई एक वजह ऐसी हम ढूंढ लें जो कि दोनों प्रॉब्लम कर रही हो. लेकिन ऐसा करना हर टाइम पे पॉसिबल नहीं होता. आसानी से अगर हो सके तो ठीक है, वरना आप उसको अलहदा से भी आइसोलेटेड फॉर्म में भी बता सकते हो कि सब फर्टिलिटी की वजह ये हो सकती है और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की ये वजह हो सकती है. ओके मैडम, फॉर सेकेंडरी आई अज्यूम कि अभी मुझे अगर इसकी मेन इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली देन मेरी डिफरेंशियल ब्रॉड होगी. माय डिफरेंशियल फॉर सेकेंडरी सबफर्टिलिटी ड्यू टू ओवुलेटरी डिसफंक्शन, मोस्ट लाइकली ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इट कैन बी ड्यू टू थायराइड डिसफंक्शन, and subfertility also can be due to tubal factor, although unlikely, and male factor or any submucous fibroid, or it can be unexplained. अब ये जो पहले आपने बताया ना ओवुलेटरी डिसफंक्शन, जैसे पीसीओ है और थायराइड डिसफंक्शन, ये तो दोनों प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर देगा. बाकी जो ट्यूबल इनफर्टिलिटी है वो एक आइसोलेटेड सब फर्टिलिटी को ही करेगा. ठीक है, और इसके अलावा और क्योंकि देखो अब 3 चीजें जो होती हैं ना रिक्वायर्ड फॉर द प्रेगनेंसी, हस्बैंड सीमन एनालिसिस, ट्यूबल पेटेंसी एंड द नॉर्मल follicular activity and the ovulation going on. ये 3 चीजें हैं ना, बेसिक चीजें हैं. उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन फेलियर या बाकी चीजें, उसकी जो प्रेगनेंसी फेलियर्स हो जाते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन, इसके बाद वाली चीज वो आ जाती है जिसमें जो इसको है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस. तो इसलिए इसमें अब ट्यूबल इनफर्टिलिटी का आपने बता दिया कि लेस लाइकली है, जो हमें भी लगता है कि इसकी हिस्ट्री के हिसाब से. तो अब इसको जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हैं उसके लिए आप कुछ नहीं करवाना चाहोगे. हमने सारी इन्वेस्टिगेशन को बेसिकली ज्यादातर फोकस किया ऑन इनफर्टिलिटी. रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस को हम कहीं पीछे भूल गए. यस मैडम.
उसके लिए मैडम मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि शुड आई गो फॉर APLS वर्कअप इन दिस पेशेंट? यू शुड गो फॉर दैट। ओके मैडम। वो इसलिए देखो कि ये इसका जो क्लिनिकल सिनेरियो बनता है ना, ये बिल्कुल अर्ली ट्राइमेस्टर, इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस हैं जी तीनों के मैडम। तीनों। तो इसलिए इसमें APLS की वर्किंग बनती है। अब APLS का ये आउटकम होता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। एक ये तो हमारे पास है ही है। और जब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस आ जाते हैं, इवन अगर दो के बाद भी कंजेक्टिव दो एबॉर्शंस भी हो जाएं तो भी उसमें APLS जो एवेल्युएशन है वो बन जाती है। ओके तो मैडम। उसके लिए आपने क्या करवाया? सही। So, madam, differential of recurrent miscarriages again. First is endocrine factors, PCOS. Second is antiphospholipid syndrome. Third can be chromosomal causes. Four uterine causes like submucous fibroid and congenital anomalies of the uterus, and it can be unexplained. अच्छा, तो इसमें what seems to be the most probable reason in this case? यूट्राइन कॉजेज हैं, क्रोमोसोमल कॉजेज हैं, कजन मैरिज है इन पेशेंट्स की, नहीं मैडम। और कोई हिस्ट्री भी, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। हस्बैंड साइड आप पे फैमिली हिस्ट्री है, डिलेड फर्टिलिटी एंड एनॉमलस बेबी की, फीमेल साइड पे नहीं है। ठीक है, तो what seem the more probable reasons out मैडम of मोर all these? प्रोबेबल एंडोक्राइन पॉलीसिस्टिक ओवरीज हाँ, मोस्ट कॉमन लग रहा है, एंड हाँ, सेकंड कैन बी ऑल्दो लेस लाइकली द पैटर्न ऑफ द मिसकैरेज, बट इट कैन बी ड्यू टू सबम्यूकस फाइब्रॉइड। हाँ। अगर ये और सबम्यूकस फाइब्रॉइड होता तो क्या इसमें बाकी कोई मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस या कोई और ऐसे प्रॉब्लम होते? yes madam, submucous fibroid is usually present with heavy menstrual bleeding or irregular bleeding due to its हम्म, location. हम्म। But since in this patient we do not have any other clear cut except PCOS, so we can think of that. तो जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो आपने ये भी देखा था कि इसमें कोई फाइब्रॉइड है या नहीं है, अगेन द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ फाइब्रॉइड। और इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस हैं दैट कैन बी more commonly occur with submucosal fibroids or mucus fibroid polyps। Okay, लेकिन madam. उसके साथ कोई ना कोई तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होते हैं और वो हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता। Okay. So this cause is again ruled out by your ultrasound, जो इसलिए आप इसमें ट्रांसवेजाइनल स्कैन की हमेशा बात करते हो, क्योंकि Okay, सब madam. म्यूकोजल फाइब्रोइड हों या एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हों, फाइब्रोइड पॉलिप्स हों, these are better evaluated by transvaginal scan। तो इवन Okay, आपने madam. जो फॉलिकुलर एक्टिविटी, एंडोमेट्रियल थिकनेस, इन सारी चीजों के लिए ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज अ बेटर चॉइस। तो वो तो आप उसी वक्त रूल आउट कर सकते थे। तो जब आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जाएगा तो उसमें फिर आप इसमें जो ज्यादा आप कह सकते हो कि इसमें जो यूट्राइन कॉजेस हैं वो रूल्ड आउट इसलिए होगी कि इसमें कोई एनॉमली नहीं हमें नजर आई, इसमें कोई सब एंडोमेट्रियल फाइब्रोइड या वो नहीं है, विच कैन बी अ रीजन फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्ट्रल लॉसेस, एंड एज वेल एज शी इज नॉट हैविंग एनी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस। तो ये चीज रूल आउट होगी। क्रोमो अब एंडोक्राइन, Okay, madam. अब इसके बाद रह जाती है चीज APLS और एंडोक्राइन डिसफंक्शंस में। ठीक है, तो Yes, ये madam. ये क्रोमोसोमल फैक्टर्स seems to be less likely in this case also। अगरचे वो एक Okay. रीजंस हो सकती हैं, लेकिन among the list जो है वो उसमें ये सबसे शायद नीचे आएगी। और उसकी भी फिर जस्टिफिकेशन, फिर इसको हम कैसे एवेल्युएट करेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि पैटर्नल या मैटरनल कैरियोटाइपिंग तो इसमें इंडिकेटेड नहीं है टू रूल आउट दिस थिंग। तो Okay. इसमें बाकी चीज फिर रह गई APLS और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन को आपने ऑलरेडी एवेल्युएट कर लिया हुआ है बाय डूइंग डिफरेंट टेस्ट एज Okay, यू सेड madam. इन योर लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पीछे तो रह जाता है वही APLS की स्क्रीनिंग। तो व्हाट यू विल डू फॉर दैट? Madam, I will, in the first step, I will go for the screening of APLS. I will advise lupus anticoagulant, anticardiolipin antibodies. If they comes out negative, my provisional will be PCOS, and I will go with all these सिर्फ खाली आप investigations. ल्यूकस एंटीकोएगुलेंट कराओगे? Madam, lupus anticoagulant, anticardiolipin antibodies. ठीक है, तो कब करवाएंगे? And अभी करवाएंगे या प्रेगनेंसी जब होगी तब नहीं करवाएंगे? मैडम, अभी अभी कराएंगे। अभी करवाएंगे, ठीक है। वन रीडिंग विल बी एनफ? No, twice 12 weekly. अगर पहली रीडिंग नॉर्मल आ जाती है तो फिर भी? Yes, madam. हाँ? Yes, madam, I will repeat. पहली रीडिंग नॉर्मल आने के बाद भी?
यस मैडम, आई थिंक रिपीट करना चाहिए। अगर नॉर्मल अगर हाई आ जाए तो मे बी ना अगर सेकंड अभी रिपीट। की रीडिंग अगर अभी की रीडिंग नॉर्मल आ गई तो देन व्हाई यू वांट टू रिपीट इट, क्योंकि अगर बेसलाइन लेवल्स अभी रेस नहीं है तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिपीट करने के बाद ये आ जाएंगे पॉजिटिव? और अगर ये अभी नेगेटिव हैं, परसिस्टेंटली सिस्टम में नहीं है, तो कैन इट बी अ कॉज ऑफ दिस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस? नहीं मैडम, अगर अभी नॉर्मल है तो फिर मेरे ख्याल। क्योंकि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की वजह तो वो एंटीबॉडीज बन सकती हैं जो कि परसिस्टेंटली सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके So मैडम। if it is normal, no need to repeat it. If these are abnormal, you need to repeat it. ओके मैडम, थैंक इसलिए यू। के बाद दफा ट्रांजिएंटली भी तो रेस हो सकते हैं, ओके मैडम। लेकिन नॉर्मल है तो इसमें फिर इसका मतलब है कि अगर सेकंड रीडिंग अगर एबनॉर्मल आ गई तो दैट मे बी ड्यू टू सम ट्रांजिएंट रीजन एंड इट अगेन हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। ओके मैडम। तो दो लेवल की जो हम बात करते हैं वो तब जब बेसलाइन लेवल रेस्ड आए तो ठीक है। चलो ये भी हमने करवा लिया और ओके मैडम। एंडोक्राइन तो आपने सारी वो कर लिया। अब इसको मैनेज कैसे करोगे? Okay, madam. If her antiphospholipid antibody syndrome screening came out to be negative, then my provisional is polycystic ovarian क्योंकि syndrome. देखो अब तक यहाँ तक जो आपने पूरा अपना कर लिया, क्योंकि बेसिकली सारा कुछ आपने पहले से ही किया हुआ था, सिर्फ उसमें आपने एपीएलएस की स्क्रीनिंग मिस कर दी। और जी अगर मैडम। ये जो है वो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे आप बताते हैं कि ये मैंने टीवीएस करवाना है और उसमें मैंने ये देखना है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी सबम्यूकोजल फाइब्रोइड एंड पॉलिप, तो हमें ये दोबारा से बताने की जरूरत ना पड़ती एज अ रीजन ऑफ रिकरेंट अबॉर्शंस। और सिर्फ एपीएलएस की स्क्रीनिंग आप इसमें ऐड करोगे तो दैट विल कंप्लीट योर वर्कअप फॉर बोथ ऑफ दीज इश्यूज। आपको फिर अलहदा से एक लिस्ट नहीं बतानी पड़ती, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइनल मैनेजमेंट ऑफ दिस केस। I will counsel my patient that the cause of her subfertility and repeated miscarriages is most likely due to polycystic ovarian syndrome. I will advise her to lose her weight, for which I will advise her diet, which is practical and sustainable with her lifestyle. I would ask her for exercise. At least 60 minutes exercise is recommended for weight loss, and I will give her ovulation enhancement with the clomiphene citrate and also with tablet metformin. I will. ये सारा कुछ आप उस वक्त कर रहे हो जब आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया इन इन्वेस्टिगेशंस पे, Yes, madam. ठीक है ना। तो सवाई इसके कि थोड़ा सा एफएसएच इसका रेस था और बाकी जो है वो मतलब इसने डिस्कस किया, ये पीसीओ वाली पिक्चर अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं आती, इवन देन यू विल गो फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो Yes, madam. प्रोबेबल रीजन जो है ना वो इसमें फिर एंडोक्राइन डिसफंक्शन ल्यूटियल फेज डिसऑर्डर्स की आप फिर बात करोगे, अगर उसमें कोई भी आपको अदरवाइज रीजन नहीं मिलती इन व्यू ऑफ हर प्रॉब्लम एंड इन व्यू ऑफ हर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जो दोनों की वजह बन सकते हैं, ठीक है। अगर ये विदाउट एनी कॉज भी ये दोनों चीजें हो सकती हैं, तो करना फिर भी आपने उसमें यही है, एंडोक्राइन डिसफंक्शन में और इडियोपैथिक में भी आपने वेट रिडक्शन का तो जरूर करना है और ओव्यूलेशन इंडक्शन का भी आपने। ये तो थी ट्रीटमेंट जो ऑन किया हुआ है। मैम ये अगर पेशेंट हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, हमने इसमें डायबिटीज रूल आउट ही नहीं किया। बेटा मुझे आपकी आवाज इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो जाती है। दोबारा रिपीट करें। मैम अगर हम इस पेशेंट में मैम अगर इस पेशेंट में हम पीसीओडी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमने इसमें डायबिटीज रूल आउट ही नहीं किया, उसमें डायबिटीज इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो जाती है। हाँ जी बताइए फाइजा। मैडम, Is diabetes the only cause for PCO? बट इट इज हैविंग हाइपरइंसुलिनीमिया। सो मैडम मेरा भी एक क्वेश्चन आपसे था कि जब मैंने इनिशियली इसकी बेसलाइन मांगी, देन आई आस्क्ड फॉर आरबीएस। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं पहले ही स्टेप में रैंडम ब्लड शुगर की बेसिकली कोई सिग्निफिकेंस कहीं पे भी नहीं होती जी। रैंडम तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसमें आप जो है वो इवन फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स की भी उतनी वैलिडिटी इसमें नहीं होगी। तो इसमें फास्टिंग इंसुलिन लेवल आप पूछ सकते हो, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन जो आपने पूछनी है उसमें आप उसकी वजह क्या बताओगे?
फैमिली हिस्ट्री या फिर एक या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर इतने होंगे और हम पीसीओ को सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ कंफर्म्ड केस ऑफ पीसीओ। तो मैडम इंस्टेड हम इसका ओजीटीटी करा सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब नहीं हुआ, देयर इज जस्ट रिड्यूस ब्लड फ्लो, जो शायद वेट रिडक्शन से बेहतर भी हो जाए। तो इसमें देखो हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम एक लंबी लिस्ट इन्वेस्टिगेशन की पेशेंट को लिख के दे दें, लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन कुछ ना कुछ कॉस्ट करती है। यही वजह है कि हमने एक एक इन्वेस्टिगेशन को इन डेप्थ सॉर्ट आउट किया है कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि इवन अगर आप कंप्लीट यूरिन भी बगैर जस्टिफिकेशन के करते हो तो भी वो आप उसको नहीं वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल दो इज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पीसीओ, लेकिन क्या हमने इसमें कंफर्म कर लिया, क्योंकि इसमें ठीक है कुछ चीजें इंडिकेट कर रही हैं ओवुलेटरी डिसफंक्शंस को, बट पीसीओ इज नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड। PCO is one of the common reasons of these ovulatory dysfunctions, but not the only reason. तो अगर ये फर्ज किया ये अल्ट्रासाउंड पे आ जाता है, फॉलिकुलर साइज कम आ जाता है या उसमें पीसीओ वाली पिक्चर आ जाती है, देन यू शुड गो फॉर फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, हाइपर इंसुलिनीमिया। और दूसरी चीज ये होती है कि जब आप इसको फास्टिंग इंसुलिन लेवल करवाते हैं, चलो उससे आपको पता चल गया कि हाइपर इंसुलिनीमिया है, उससे आपकी मैनेजमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? शी इज ऑलरेडी गिविंग पेशेंट ग्लूकोफेज, फाइजा ने तो ऑलरेडी ग्लूकोफेज स्टार्ट भी कर दी साथ। तो डू यू थिंक स्टिल यू नीड टू डू फास्टिंग सीरम फास्टिंग इंसुलिन लेवल? क्योंकि दो चीजें आपको बतानी होती हैं, इसके कराने की वजह क्या है, इसे डायग्नोसिस में क्या हेल्प मिलेगी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज ये कि ये इन्वेस्टिगेशन जो भी आप करवा रहे हो उससे उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। और हर पीसीओ के केस में फास्टिंग इंसुलिन लेवल बढ़े हुए नहीं होते, ये जरूरी नहीं होता। सो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये इतना बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। और दूसरा ये कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल बढ़े हुए आएंगे तो आपने मेटफॉर्मिन ही देनी है। So if for any other reason you are giving the patient metformin at this time, so I don't think there is any strong reason for doing fasting insulin level. But this is again a debatable thing, कि जिसमें हम मजीद उसमें अब देखो जो डिफरेंट एग्जामिनर्स होते हैं उनके एक ही डिजीज से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और हर एक अपना व्यू पॉइंट होता है। सो फॉर दैट रीजन आपने उसके डिफरेंट जो पॉइंट हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसमें और वो जो आप जो डिस्कस करते हो ना चीजें, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे डिस्कस नहीं करते, आप उसको डिस्कस करते हो ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जस्टिफाई करना आसान होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इज इट क्लियर? जी फाइजा। जी मैम, थैंक यू। हेलो मैडम, इसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट तो करा सकते हैं, इट इज हैविंग मोर सेंसिटिविटी। वो क्यों करवाओगे मैडम? इसीलिए like RBS is having has not got increased sensitivity and FBS also. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए प्रेगनेंसी में तो करवाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो डायबिटीज कर सकती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसी होती हैं प्रेगनेंसी में जो पेशेंट पहले से डायबिटिक ना हो उसको भी डायबिटिक कर सकती हैं। और बाद दफा वो डायबिटीज जो है वो अनएक्सप्लोर्ड रहती है, अनएवेल्युएटेड रहती है until and unless we give the glucose load to that patient. But why in a patient who is not pregnant? और क्या ये ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट की तो बिल्कुल भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। फास्टिंग इंसुलिन लेवल को तो फिर आप किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट की इसमें जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं बनती। उससे बेहतर है कि आप इसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवा लो, फास्टिंग और 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल करवा लो। रैंडम का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रैंडम मींस हो सकता है पेशेंट ने आधा घंटा पहले खाना खाया और हो सकता है ग्लूकोज रिच खाना खाया हो, तो वो रैंडम तो उससे इफेक्ट हो जाएगा। रैंडम का मतलब है किसी भी टाइम, लेकिन अगर आप उसको टाइम कर दो अकॉर्डिंग टू द मील, यानी फास्टिंग और 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल, तो फिर उसकी कुछ सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बेहतर हो जाती है। तो OGTT नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। मैम, अगर किसी पेशेंट की
कार्डिक एक्टिविटी नहीं आ रही है रिकरेंट मिसकैरेजेस में 6 वीक्स पे तकरीबन, तो मैं उसका सबसे बहुत पहले likely इसका APLS का डायग्नोसिस रूल आउट करूंगी, ओके सबसे थैंक पहले APLS, क्योंकि जो देखो जो ल्यूटियल फेज डिसफंक्शंस होते हैं, खास तौर पे जो PCO में या एंडोक्राइन डिसफंक्शंस होते हैं, वो थोड़ा सा इससे लेट वाली स्टेज पे जाके कर रहे होते हैं एट अराउंड 10-12 वीक्स इस पे। लेकिन अगर कार्डियक एक्टिविटी बिल्कुल ना आए तो दो रीजंस हो सकती हैं। क्रोमोसोमल, अगर पेशेंट है मतलब कजन मैरिज है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो एक तो उसमें ये कि उसका क्रोमोसोमल पोटेंशियल या उसका जो है वो वही सारा उसमें डिफेक्टिव है। लेकिन अमूमन वो रीजन ज्यादा बेहतर समझी जाती है फॉर अ सिंगल एबॉर्शन। लेकिन बहुत कम एंडोक्राइन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जैसे बैलेंस ट्रांसलोकेशंस एंड यूप्लॉइडिस, जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस कर सकते हैं। और उसके पीछे फिर एक आपने फैमिली ट्री को भी एक्सप्लोर करना होता है, और उसकी वजह भी फिर आपने बतानी होती है। यही वजह है कि ये जब रिकरेंट 3 एबॉर्शन जैसे पेशेंट को हुए, तो इसमें अब बहुत स्ट्रांगली हम ये कहेंगे कि अगर बावजूद हमारी सारी थेरेपी के जो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि अगर फिर भी हो जाता है, देन कैरियोटाइपिंग एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस ऑफ द एबॉर्टर्स, नॉट ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि वो हमें बताएगा। लेकिन अमूमन ये स्पोरेडिक एबॉर्शन की रीजन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ज्यादा ये जो होता है बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले, जिसमें ये भी ना आए, या तो APLS इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब टॉप ऑफ लिस्ट पे होगा वो APLS होगा। उसके बाद बाकी चीजें एंडोक्राइन डिसफंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कोई अगर ओवर्टली अगर कोई है, क्लियरली कोई हाइपोथायराइड है, तो उसमें हो सकता है, अगर जो उसमें भी थोड़ा सा लेट 10 to 12 वीक्स पे जाके होगा। लेकिन ये तो बहुत 6 to 8 वीक्स की सारी एबॉर्शंस हैं, और इसमें ज्यादातर फीटल कार्डिक एक्टिविटी आई भी नहीं। चलें जी फायजा, अब हम इसको कार्पस ल्यूटियल डिफेक्ट को कैसे हम जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे? किसको? कार्पस ल्यूटियल डिफेक्ट को। सॉरी दोबारा से बोलें। कार्पस ल्यूटियल डिफेक्ट मींस ल्यूटियल नहीं, फेज देखो डिफेक्ट। कॉर्पस ल्यूटियल डिफेक्ट तो हम करते हैं, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन बनाना। अब कॉर्पस ल्यूटियम का अगर डिफेक्ट होगा तो प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी होगी। प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी जब होती है तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनमें ऑलरेडी ल्यूटियल डिफेक्ट्स होते हैं, वो अमूमन प्रोजेस्टेरोन कम बना रहे होते हैं, तो उससे प्रेगनेंसी सस्टेन करना वो भी इतना अर्ली ऐसा नहीं होता कि उसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी आए ही ना। तो उसमें थोड़ा सा लेट जाके एबॉर्शंस होती हैं, उसमें इतना अर्ली वो भी नहीं होती। तो ये इस स्टेज पे अगर कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंसी हमने करनी है। और कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंट कब होता है? जब ओव्यूलेशन ना हो। ओव्यूलेशन नहीं होगी, अनरप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंट हमेशा बनता है, वो प्रोजेस्टेरोन नहीं बना सकता, और इन वेरी लिटिल अमाउंट्स। तो ये क्लिनिकली हमारे क्लिनिकली जो पेशेंट इसकी हिस्ट्री देगा वो ये होगा प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग। अमूमन जो प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग की हिस्ट्री देते हैं पेशेंट, वो ल्यूटियल डिफेक्ट्स की वजह से ही होती है, ठीक है। मींस डे 21 प्रोजेस्टेरोन विल सजेस्ट इट, या फिर हम उससे डे 21 प्रोजेस्टेरोन से भी हम असेस कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो ल्यूटियल डिफेक्ट्स आर आउट, ठीक है। मैम जी स्कैंटी हम मेंस्ट्रुएशन, एक मैडम लास्ट क्वेश्चन, स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के साथ हमारे पास पेशेंट आती है, अगर हम PCOS रूल आउट कर लेते हैं तो इसके अलावा हम उसके लिए हार्मोनल प्रोफाइल में और कौन सी चीजें करेंगे? किस चीज के साथ पेशेंट आती है? अभी स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के साथ पेशेंट आती है, लेकिन PCOS की ऑल्टर पिक्चर नहीं है। हैवी मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हो? स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के साथ। स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, देखो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन जो है वो अब उससे पहले एक लंबी लिस्ट होती है उसकी हिस्ट्री एवेलुएट करने की। ये स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के साथ उसके बाकी जो कोएग्जिस्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? देयर कैन बी 101 रीजंस ऑफ इट। तो इन्वेस्टिगेशन तो उसके हिसाब से होंगी। अब स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन कैन बी ड्यू टू ओवेरियन इनसफिशिएंसी, इट कैन बी ड्यू टू ओवेरियन डिसफंक्शन लाइक इन PCO, या फिर ये एक्सट्रीम्स ऑफ वेट गेन या वेट लॉस की वजह से भी हो सकता है, और इट मे बी एज अ रिजल्ट ऑफ सम एबॉर्शन, या फिर कोई अगर DNC हुई या कोई सर्जरी हुई उसके नतीजे में भी हो सकता है। सो वॉट एवर द रीजन यू नो बाय हिस्ट्री, उसके हिसाब से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी। उसमें स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की एक लिस्ट तो नहीं होती, उसमें तो ये जो लिस्ट होती है इन्वेस्टिगेशन की, ये हमेशा
वेरी करती है, चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेशेंट। ठीक है, थैंक यू मैम। जी फाइजा। Okay, madam. I will start with tablet Clomid 50 milligram with tablet glucophage starting on day second of the cycle. Continue for 5 days, and if she will not ovulate with 50 milligram, And I when will. you will start it? When you will start it? Madam, in the second day of cycle. नहीं वो ठीक है, मतलब फ्रॉम जस्ट नाउ, यानी जस्ट नाउ का मतलब ये है कि फ्रॉम नेक्स्ट साइकिल, या इसमें कुछ अभी टाइम पीरियड आप इसको दोगे? Madam, I will repeat her FSH in the next cycle if it comes out to be normal with LH and APLS is negative, her semen analysis is normal. So in the first step, I'm not going for this tubal patency test and I will go for trial of Clomid for the 3 अगर cycles. FSH LH रेशियो ठीक आ जाती है तो इसका मतलब है पीसीओ वाला तो इतना फिर मसला नहीं है, फिर आप मेटफॉर्मिन इसको क्यों दोगे? Like madam, FSH is not raised. It is not 8 for like 10 से ज्यादा अगर इसका आ जाए तो देन इट मींस के तो फिर विद डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही है पेशेंट। अच्छा ठीक है, फिर So in the next cycle, I will start her on the second day of cycle with tablet Clomid 50 milligram with tablet glucophage, and if she will not ovulate अब with that. आप इसको मतलब ठीक है, एफएसएच इसका ठीक आ गया, बाकी भी सारी चीजें ठीक आ गई, तो आर यू गिविंग हर मेटफॉर्मिन ऑन द जस्ट assumption ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओ, या किस वजह से? मैडम बेनिफिट ऑफ डाउट आई थिंक 26 देना चाहिए पेशेंट को। क्या? यानी मैडम साइकिल भी की अगर फ्लो डिक्रीज है, वेट गेन है, तो आई थिंक देना चाहिए पेशेंट को। तो क्या इससे बेहतर नहीं कि हम उसको कहें पहले वेट लूज करें और उसके बाद फिर हम उसको कंसेप्शन के लिए मेडिसिन दें? BMI is 26, what is your aim? आप इसमें कितना को वेट रिडक्शन का उसको कहोगे? 5 to 10%, like 3 to 6 किलोग्राम। अच्छा, तो क्या हम इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड और दे सकते हैं? As madam patient is right from the conception. Madam, patient is 30 years of age. She is a young patient, so yes, we can advise her for weight loss and. ये जो चीज है ना, जो मेटफॉर्मिन का साथ देना, मतलब ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ देना, हो सकता है आपके कुछ एग्जामिनर इससे एग्री ना करें। मैनी विल एग्री एंड मैनी विल नॉट एग्री। तो इसलिए इसमें ज्यादा बेहतर या सेफ जो इसमें जो बन जाती है स्ट्रेटेजी, वो ये कि फर्स्ट यू विल आस्क द पेशेंट टू रिड्यूस वेट, क्योंकि इसका हाइपोमेनोरिया बहुत सालों से नहीं है, ये कुछ महीनों से है, और प्रोबेबली इट इज रिलेटेड विद द वेट गेन। तो बहुत ज्यादा वेट गेन इसका नहीं है, क्योंकि BMI इज नॉट दैट इन अनसेफ लिमिट्स। 27 से ऊपर होता तो डेफिनेटली होता। तो इसलिए आप इसको अगर वेट लॉस का कह दोगे, जस्ट फॉर 1 or 2 months शी कैन लूज दिस वेट, फिर उसके बाद आप ओव्यूलेशन इंडक्शन दोगे तो देयर विल बी अ बेटर रिस्पॉन्स, as well as we will not, probably we will not need to give metformin along with that. Okay. चलें। Okay, madam. Then I will start her with tablet Clomid after 2 to 3 months. ठीक है, हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की हम डिटेल में नहीं जाते, ओव्यूलेशन इंडक्शन आपने दे दी, then what? मैडम अगर 3 months के बाद if after 3 months of ovulatory cycle my patient will not conceive, then I will advise her for tubal patency test, and I will go for laparoscopy. And laparoscopy versus hysterosalpingography, ये फिर आपको बताना पड़ेगा। तो why laparoscopy, why not hysterosalpingography? Madam, patient is having subfertility of more than 3 years duration, and also we can also rule out other diseases with laparoscopy. We can look peritoneum and any uterine anomaly. We will go for hysteroscopy alongside with. बाहर आपको बाहर से देखने से तो नहीं पता चलेगा। मैडम इसके लिए फिर हमें hysteroscopy भी करना पड़ेगा साथ। अच्छा, लेकिन उसका ज्यादा जो होगा ना, हम ओवेरियन स्टेटस पे उसको कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमें पता चल जाएंगी, ओवेरियन रीडिंग हम कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी के टाइम पे। अगर हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज नजर आ गई तो पेरिटोनियल पैथोलॉजी ऐसी तो कुछ नहीं होती कि जो सब फर्टिलिटी या इन सब चीजों पे ले जाए। पेरिटोनियल पैथोलॉजी का लफ्ज बिल्कुल वेग है, इसे like madam endometriosis is less likely, but
हाँ नहीं, वो we can have a एंडोमेट्रोसिस look ना ही on that. बोले तो, क्योंकि फिर एंडोमेट्रोसिस वाली चीज बस कोई भी, क्योंकि देखो पेल्विक पैथोलॉजी हमें पहले से पता होती है और उसमें लेप्रोस्कोपी वर्सेस हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें ये है कि चलो वेरिएंट स्टेटस हम देख सकते हैं, और Yes. बाकी एक्सटर्नल जो है वो यूट्राइन एनोमली, वो तो हमें फिर अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जानी चाहिए। बट इंटरनली कोई सब सेप्टेट यूट्रस है या क्या है, वो हमें फिर हिस्टेरो से ही पता चलेगा। लेकिन वो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, क्योंकि हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी को हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि उसमें ऐसी कौन सी यूट्राइन एनोमली है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन करेगी, वो उसकी फेवर में नहीं जाता डायग्नोसिस। तो लेकिन ठीक है, अब इसमें 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं कि पेशेंट कंसीव किया या ना किया। नाउ सपोज the patient conceives after 2 cycles of ovulation induction. In view of her previous bad obstetric history, what you will do for her? Madam, I will ask patient to. अब इसमें देखो, अब बाद दफा हमें कुछ चीजें पता चल जाती हैं, बाद दफा हमें कुछ नहीं पता चलती। यानी कुछ ना पता चलने की बात यह है कि हमें APLS भी डायग्नोज ना हुआ। अगर एक चीज डायग्नोज हो जाती है ना, तो फिर हमें पता है कि ये APLS है, हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, हमने पहले से उसका प्लान बनाया होगा कि ये इस पेशेंट को अगर APLS होता है तो फिर तो हम इसको हो सकता है लो प्री नबी से ही शुरू करते हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर हमें एंडोक्राइन डिसफंक्शन अगर कोई पर्टिकुलर पता चल जाती है तो भी हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इडियोपैथिक होता है, सपोज उस केस में कि जिसमें हमें कोई वजह नहीं मिलती, तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट आफ्टर 2 cycles of ovulation induction. Madam, if it's idiopathic and she's having also history of recurrent miscarriages, and if she conceives, I will ask her to start tablet Escart 75 to 100 milligram with urine pregnancy test when came out to be positive, and I will advise her to go for early viability अगर scan. APLS इसका नेगेटिव था तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग Escart? नो मैडम, आपने कहा था ना कि अगर पेशेंट की APLS की स्क्रीनिंग ना हुई हो तब। क्या ना हुई? नहीं, मेरा मतलब है कि APLS स्क्रीनिंग तो हमने हर हाल में इसमें करानी है। मेरा ये था कि APLS स्क्रीनिंग इसकी नेगेटिव है। तो फिर मैडम वी विल गो फॉर, आई विल आस्क हर टू कंटिन्यू फॉलिक एसिड, and she will have, I will advise to have ultrasound at 6 to 7 weeks for fetal viability and for number of fetus, and then I will go for scan at 11 to 14 weeks for ductal translucency. I will advise my patient to book herself at tertiary care hospital, and I will go वो for. तो बात की बात है, हम तो अभी तो सिर्फ इस पे हैं कि पहले इसके तीनों एबॉर्शन 6 to 8 वीक्स पे हुए। तो Yes, अब madam. हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने स्कार्ट की बात की, उसका क्या लॉजिक है? और अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो उसमें फिर कितने % चांसेस हैं इसके, मतलब ट्रीटमेंट देने ना देने की सूरत में इसके कितने % चांसेस हैं दोबारा से एबॉर्शन होने के? Madam, APLS, if it is negative, we have investigated, antibodies are negative, then I will not go for tablet Escart. And I will advise my patient that the chances of miscarriage increases after every miscarriage, and after 3 miscarriages, the chance of miscarriage is 40% around. So I will continue with. कि नहीं पेशेंट आपसे सवाल कि अब 40% है तो इसके लिए कुछ करें? मैडम, इस पेशेंट में अगर APLS नहीं है तो फिर हम एस्कार्ट के अलावा और गुड यानी गुड इसकी जो है एंटीनेटल विजिट्स, एंड यस समवन हैज मैसेज में बोला है, तो मैडम जस्ट प्रोजेस्टेरॉन, वी विल गो फॉर प्रोजेस्टेरॉन, वी विल स्टार्ट प्रोजेस्टेरॉन इन दिस पेशेंट। सॉरी, बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा था। प्रोजेस्टेरॉन का तो बिल्कुल भी कोई, एस्कार्ट का तो फिर कोई लॉजिक बनता था, प्रोजेस्टेरॉन का क्या लॉजिक होगा? मैडम, पेशेंट की 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हैं, और सो वी कैन गो फॉर प्रोजेस्टेरॉन टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। To support pregnancy in what way? मैडम, लाइक पेशेंट कैन हैव बेसिकली ये फिर वो ग्रे एरिया है जहां पे हम कुछ चीजों को प्रोफाइलेक्टिकली यूज करते हैं इन द केसेस वेयर देयर इज नो रीजन फाउंड। क्योंकि अगर तो हमें जो है वो ये मिल जाती है वजह, तो फिर तो हम हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम।
लेकिन ये है कि अगर हमें कोई रीजन नहीं मिलती, और खास तौर पे उस केस में जहाँ पे अब देखो प्रोजेस्टेरोन की या एस्कार्ट की तो नहीं, वो तो हम प्रोफाइलेक्टिकली बहुत यूज करते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जिनकी कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस हैं, और प्रोजेस्टेरोन हम इसको बेसिकली उस सूरत में देते कि जब इसमें इसका कोई 10 वीक से ऑनवर्ड इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती, फिर ये अबॉर्ट करती, ब्लीडिंग होती, या इस तरह के कुछ केसेस, और जो है वो प्री टर्म लेबर वाली चीज होती, ये इस तरह की चीजों में. But when there is when the fetus is not growing, embryo is not growing, there is no fetal cardiac activity. तो उसमें यूजुअली उस तरह से रोल नहीं होता कि ये किसी यूट्राइन एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी की वजह से ये अबॉर्ट हुआ. बेसिकली देयर इज सम इनहेरेंट डिफेक्ट इन द फीटल टिश्यू, या फिर दूसरी जिसकी वजह से ये वो नहीं होता, और सम थ्रोम्बोजेनेसिस इन द प्लेसेंटा. दिस वी कैन अज्यूम इवन इन द एब्सेंस ऑफ APLS. इसने इसलिए वजह भी पूछ रही थी, एस्कार्ट देने की इस तरह से एक प्रोफाइलेक्टिक रीजन बन जाती है. प्रोफाइलेक्टिक क्योंकि इसमें हम प्लेसेंटा को तो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता. और दूसरी बात ये कि पिछली तीनों एबॉर्शन में इसका एबॉर्टस का कोई कैरियोटाइपिक एनालिसिस नहीं हुआ, हमें क्रोमोसोमल एनोमलीज का नहीं पता, और इतना अर्ली हम अमूमन क्रोमोसोमल एनालिसिस करते भी नहीं हैं 6 to 8 वीक्स पे जाके, ये तो जाके थोड़ा सा लेट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी किया जा सकता है. लेकिन ये है कि एस्कार्ट को फिर उस सूरत में या लो प्रिन किसी सूरत में देना, फिर हम इसको जो है वो किसी प्रोफाइलेक्टिक इसका रोल आएगा, नॉट एविडेंस बेस्ड. एविडेंस बेस्ड पे तो फिर ना प्रोजेस्टेरोन का रोल डेफिनेटली इन प्री टर्म लेबर है. अब प्रोजेस्टेरोन जो है वो बेसिकली जो हम देते भी हैं वो इतना अर्ली तो देते भी नहीं है, लेकिन एस्कार्ड एक ऐसी चीज है जो इवन इन प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड में भी दिया जा सकता है, क्योंकि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसिस में जो एक और चीज देखने वाली होती है, इसमें अगर सब फर्टिलिटी वाला इशू ना भी होता तो भी उसमें एक और चीज जो हम देख सकते हैं ऑन ट्रांसवेजाइनल स्कैन, वो ये है सब एंडोमेट्रियल डॉपलर फ्लो. उससे क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लो कितना है कि इससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा, तो उस सूरत में भी जो है वो फिर एस्कार्ट को देना जस्टिफाई बनता है. तो यही मेरी वजह थी पूछने की कि क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है या इसको प्रोफाइलेक्टिकली आप दोगे. ओके मैडम. प्रोफाइलेक्टिकली देने में इसका हर्ज कोई नहीं होता, क्योंकि जब आप कोई प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देते हो तो प्रोफाइलेक्सिस में बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं, तो फिर आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करना होता है. एंड व्हेन द बेनिफिट्स आर मोर एज कंपेयर टू द रिस्क, तो फिर आप उसमें उसको प्रोफाइलेक्टिकली ट्राई कर लेते हो. ठीक है. आप प्रोजेस्टेरोन अभी नहीं दोगे, लेकिन एस्कार्ड आप इसमें शुरू कर सकते हो अलोंग विद सीरियल अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग. जैसे इसमें जो है वो इसके हो गए अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेज हैं, तो उसमें फिर कितना इसका क्या कैसे ऑनगोइंग उसकी ग्रोथ है, ये आपने असेस करना ही करना. ठीक है. थैंक यू मैडम. मैडम इसमें एक दो चीजें प्लीज मुझे डिस्कस करनी थी आपसे कि मैडम लाइक हमने इसको पेशेंट को क्लोमिड पे स्टार्ट करवाया एंड शी इज हैविंग 3 ओवुलेटिंग साइकिल, और हम ये भी देख लिया कि इसके जो है वो ट्यूब्स आर पेटेंट. So if she is having 3 ovulatory cycle and she is not conceiving with that, so will we continue for further cycles or we will go for another option? Ovulation induction के साथ की बात कर रहे हो? जी जी. We have given her Clomid and she is ovulating. She is having 3 ovulating cycle, but she is not conceiving with ovulating cycle. Depend करता है कि इसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस भी ठीक थी, इसमें फॉलिकल साइज भी ठीक था, आपने इसको 3 साइकिल्स दिए, तो इसमें फिर आप यू कैन गो अहेड फॉर द अदर ART मेथड्स जैसे IUI वगैरह हैं, उसमें वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. ओके. बट मैडम सेकंड स्टेप पे इसमें हम लेट्रोजोल या फिर इंजेक्टेबल पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? लेट्रोजोल और इंजेक्टेबल, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस फॉलिकुलर ट्रैकिंग इन द साइकिल्स, क्लोमिफेन इंड्यूस्ड साइकिल्स. क्योंकि लेट्रोजोल का बेहतर बेनिफिट होता है अगर क्लोमिफेन अलोन के साथ अगर फॉलिकल मैचुरेशन ना हो, और इसके अलावा उस वक्त भी जब एंडोमेट्रियल थिकनेस की ग्रोथ ज्यादा ना हो रही हो, क्योंकि 3 लेयर्स एंडोमेट्रियम का होना और उसकी एडिक्वेट थिकनेस का होना is another parameter for successful ovulation and the implantation of the developing follicle. तो इसलिए ये इन दो चीजों पे आप डिसाइड करोगे.
तो प्राइमरी मेडिसिन आपकी रहेगी। अब चूंकि ये दोनों चीजें इफेक्ट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीओ, इसलिए लेट्रोजोल को उसके हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और पेशेंट जो है वो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, जो बहुत जिनके साइकिल बहुत डिस्टर्ब होते हैं, स्वेयर ओलिगोमेनोरिया, वेट गेन, हिर्सुटिज्म, एक्ने, उनमें तो लेट्रोजोल के साथ ही आप स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें ओवुलेशन रिस्पॉन्स उसमें थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एक ऐसा केस जो बॉर्डर लाइन है एज रिगार्ड टू पीसीओबी, और इसमें हम सब फर्टिलिटी वाली रीजन भी अभी फिलहाल पीसीओ को समझ रहे हैं, क्योंकि और हमें कोई रीजन नहीं मिली इसमें, और ना ही रिकरेंट एबॉर्शन की हमें कोई वजह मिली। तो इस वजह से इसमें हम क्लोमिफेन के साथ शुरू करेंगे। फॉलिकल साइज ठीक है, एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, फिर उसमें हमें लेट्रोजोल तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीजें जिन पे हमें डिसाइड करना है फॉर डोज एंड फॉर टाइप ऑफ द ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट्स। मैडम एक क्वेश्चन और है कि अगर पेशेंट ड्यूरिंग फर्टिलिटी वर्कअप शी इज हैविंग सेमेन एनालिसिस ऑफ हस्बैंड, तो हम कितने टाइम बाद उसको रिपीट कराएं? लाइक 6 मंथ्स बैक अगर उसका सेमेन एनालिसिस नॉर्मल था, तो हम अब उसको अगर इंडक्शन हम देने जा उसको रहे हैं, तो क्या नॉर्मली समझेंगे, प्रोवाइडेड के इन बिटवीन हस्बैंड का कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, कोई यानी अप ड्रग टिल 1 इंजरी। ईयर मैडम हम इसको ले सकते हैं, कोई अगर बीच में हाँ जी, इशू नहीं है तो? यानी मैडम 1 ईयर तक का भी अगर होगा तो हम कंसीडर करेंगे, हाँ कोई मतलब इशू? दे सकते हैं। इसमें तो चूंकि 3 साल की है, इसमें क्या हुआ वो हमें कुछ अंदाजा नहीं है। सो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, नॉन इन्वेजिव तरीका है, तो इसमें हमने फिर इसलिए इसका हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करवा लिया। ये अदरवाइज अगर कोई नहीं है, तो अगर 1 ईयर बैक का भी हमारा सेमेन एनालिसिस हाँ, है फिर भी तो हम हम? उसको मान लेंगे, ओके लेकिन मैडम, ज्यादा सेफ होता है अगर विद इन 6 मंथ्स का हो तो। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं कर लूँ? हाँ जी। मैडम अगर हम क्लोमिफीन देते हैं 50 mg और मेच्योर फॉलिकल बन जाता है, लेकिन वो कंसीव नहीं करती, फिर जब मैडम उसको नेक्स्ट साइकिल देना है तो उसको 50 mg ही देनी है या उसकी डोज इंक्रीज करनी है? अगर फॉलिकल ठीक साइज का बन रहा है, एडिक्वेट साइज का बन रहा है, तो फिर आप डोज क्यों इंक्रीज करोगे? क्योंकि सिर्फ फॉलिकल के साइज को बढ़ाते जाने से ही तो प्रेगनेंसी नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और उन सारी चीजों में उसकी ओव्यूलेशन का होना, एग का फर्टिलाइज करना, और फिर फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांट होना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम उनको नहीं उस तरह से कर सकते। हम उसको मतलब बॉडी ट्रीटमेंट से हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि फॉलिकल को मैच्योर कर दें और उसकी ओवुलेशन कर दें बाय गिविंग सर्टेन इंजेक्शंस। ये इससे ज्यादा इसके बाद वाले जो इवेंट हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते। वो हमारे हाथ में उस वक्त आती हैं जब हमने इक्सी या आईवीएफ की तरफ जाना हो, तो फिर सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाती हैं। फिर भी एक चीज हमारे हाथ में नहीं आती, वो है उस फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांट करना और उसका आगे ग्रो करना। ठीक है। और मैडम अगर मेच्योर अगर नहीं हाँ जी, अगर नहीं बनता एग ना, मतलब अगर आपने क्लोमिफीन दे दी मैक्सिमम डोज की, मैडम फिर वो एफएसएच के इंजेक्शन भी फिर वो दे सकते हैं हम, फिर वो दे सकते हैं हम, वो दे सकते हैं। और क्योंकि मैडम अक्सर जी मैडम बता दें। हाँ, इसमें स्टेप वाइज होता है ना कि आप आखिरी ऑप्शन पे पहले नहीं चले जाते। आप हमेशा ठीक है। पहली ऑप्शन से और लो डोज से शुरू करते हैं, और उसमें भी अगर ना हो तो फिर ग्रेजुअली आप स्टेप अप करते हो उस ट्रीटमेंट को। और अगर फर्ज किया एक ट्रीटमेंट की मैक्सिमम डोज पे पहुंच गए और मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए आपने यूज किया, देयर इज नो इफेक्ट, देन यू स्विच ऑन टू द अदर मेथड्स। या जी मैडम। फर्स्ट साइकिल में भी डोज बढ़ा के आपने देख ली तो उसको कंबाइन कर दो। देखो, ओवरी को इतना स्टिमुलेट करना और उसको पहले ही साइकिल से इंजेक्शन या वो भी दे देना, वो ठीक इसलिए नहीं होता कि आप ओवेरियन एग्जॉस्शन भी होती है, मतलब उसमें जाहिर हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का भी रिस्क तो होता ही होता है, लेकिन ओवेरियन एग्जॉस्शन भी होती है। तो इसलिए उसको जो है वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना होता मैडम एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। है। जी मैडम इसी पेशेंट में जो अभी डिस्कस हुआ है और पेशेंट ने कंसीव नहीं किया 3 मंथ बैक एंड वी आर प्लानिंग फॉर लेप्रोस्कोपी, तो हाँ जी। मैडम फिर हम इसमें लेप्रोस्कोपी के साथ हिस्टेरोस्कोपी भी करें, क्योंकि हमें इसमें कोई अनएक्सप्लेन ही लग रहा है, फिर हमें ऐसे फाइंडिंग नहीं मिल रही, फिर हम हर चीज को रूल आउट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके साथ हिस्टेरो भी करें या फिर सिर्फ लेप्रो करें? देखो, लेप्रो का और हिस्टेरो का दोनों, मैं वही बार बार बात कर रही हूँ ना। आप जब ये पूछते हो ना सवाल कि हम ये भी करेंगे या ये भी नहीं करें, सबसे पहले आप ये सवाल अपने आप से पूछो कि अगर मैं हिस्टेरो करना चाहती हूँ तो क्यों, उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड योर ऑब्जेक्टिव वुड प्रोबेबली बी टू डिटरमिन एनी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, या एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी तो खैर इतना नहीं उसमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनेगी, लेकिन ये कि कोई यूट्राइन एनोमली जैसे सब यूट्रस,
अब अगर फर्ज किया आपने वो डायग्नोस कर भी लिया सब सेप्टेट यूट्रस, तो क्या फिर आप उसको रिमूव करोगे? और दूसरी बात ये कि हाउ इट कैन कॉज द प्रेगनेंसी लॉसेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और वो भी उसमें जब फॉलिकल एक्टिविटी कार्डिक एक्टिविटी आई ही नहीं है। तो ये वो बहुत सारे सवाल हैं जो फिर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद बनते हैं। वो इसलिए कि जब हम कहते हैं कि हमने ये भी करना है ये भी करना है, तो फिर उसके फाइनल आउटकम पे भी गौर करो कि हाउ दिस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू अफेक्ट माय मैनेजमेंट एंड हाउ इट इज हेल्पिंग टू मेक मी अ फाइनल डायग्नोसिस। तो लेप्रोस्कोपी की हद तक तो चलो ठीक है, आपने उसकी ट्यूबल पेटेंसी भी देख ली, जो आपने चलो अगर अर्ली फेज पे भी देख लिया आप उसकी रीजन दे सकते हो। और दूसरा ये कि ओवेरियन स्टेटस को भी देख लेना। तो अगर कोई एनलार्ज्ड ओवरीज हैं, थिक कैप्सूल है, बिल्कुल वाइट थिक कैप्सूल है और उसमें वो भी हैं, तो आप उसको ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हो, विच इज अ वे ऑफ मैनेजिंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो उसकी तो कोई तुक बनती है, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन करोगे हिस्ट्रोस्कोपी के साथ, अगर हिस्ट्रोस्कोपी और करते हैं, लेकिन चाहे ये करनी हो तो फिर भी उसका लॉजिक आपको देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैडम मेरा क्वेश्चन है मैम मेरा, डॉक्टर तो मैडम शहनाज, एंडोमेट्रिक थिकनेस कितनी होनी चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए? एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए? देखो थिकनेस तो वेरी करती है ना डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल जो बेसलाइन जो होती है जो कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान में होती है, बेसल एंडोमेट्रियम बेसिकली जो होती है दैट इज 1 to 2 मिलीमीटर, और ये तकरीबन 6, 7, 8 तक पहुंच जाती है इन द लेट फॉलिकुलर फेज। It increases more at the time of ovulation, but it reaches at its peak in the premenstrual phase, जो कि 16, 17, 18, इवन 20 तक भी चली जाती है, और कुछ पेशेंट में तो 24 mm तक भी देखी गई है, लेकिन ऑन एवरेज इट इज 16 या 18 इतनी तक की हो जाती है। सो व्हेन एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्टर रिपोर्ट्स के एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है और वो उस पर अल्ट्रासाउंड पे लिख दे कि ये एंडोमेट्रियल थिकन एंडोमेट्रियम है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कब किस मेंस्ट्रुअल फेज में हुआ था, और ज्यादातर केसेस में तो पेशेंट ये बताता है कि ये पीरियड से बिल्कुल पहले हुआ था, तो उसकी सिग्निफिकेंस फिर कम हो जाती है। यही अगर इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन अगर 16-18 mm हो तो डेफिनेटली ये रेस्ड है। तो इसलिए जो है एंडोमेट्रियल थिकनेस को हमेशा रिलेट किया करें विद द मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल डेज, जब ये हुआ तब ही आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। चलें जी, अब हम इसको स्टॉप करें आज के डिस्कशन को। डॉक्टर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि हम लोग IUI के लिए हम लोग जाएंगे, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ओवुलेशन इंडक्शन फेल हो गया है लेप्रोस्कोपी के बाद, फिर मैं इसको IUI के लिए रिकमेंड करूंगी। That is a way of ART। जब आपकी ओरल ओवुलेशन इंडक्शन फेल हो जाती है तो फिर उसके बाद अगली चॉइस तो नहीं होती है ना। 3 साइकिल्स या 6 साइकिल्स के बाद? बहुत गड़बड़ कर रहा है। 3 साइकिल के बाद मैं ART के लिए जाऊंगी या 6 साइकिल्स के बाद, ये मुझे पूछना है। देखो इसमें ऑन एवरेज 3 साइकिल्स, आप एक वक्त में जो 3 साइकिल्स दे देती हो ना, हमें उसमें सारा पता चल जाता है कि ये किस डायरेक्शन पे ओवुलेशन इंडक्शन का इफेक्ट जा रहा है। तो इसमें 3 साइकिल्स के बाद आप चले जाओ तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अगरचे किताबों में तो आपके 6 months भी लिखा हुआ है, लेकिन 3 months में आपको अंदाजा हो जाता है कि वेदर इट इज गोइंग टू फेल और टू सक्सीड। तो इसलिए आप उसी अंदाजे के ऊपर फिर आप इसको पेशेंट के साथ डिस्कस करिए। क्रोमेट से नहीं हो रहा रिस्पॉन्स, तो फिर हम लाइक लेजरा पे ले आते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर्स पे ले आते हैं, तो मतलब और बुक्स कहती हैं कि इट जस्ट एन ऑल्टरनेटिव है, तो फिर हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए 3 दफा क्लोमेट से नहीं। देखो लेजरा का एक प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी आप समझ लो थोड़ी सी ज्यादा पोटेंट ड्रग है, लेकिन उसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि जिन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रो नहीं कर रही होती अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड लेवल्स, उसमें फिर लेजरा इज अ बेटर चॉइस। इवन अगर कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी का केस ना भी हो तो भी उस सूरत में ये लेजरा फिर दिया जाता है, खास तौर पे उन केसेस में जहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा एस्ट्रोजन सिक्रीशन को भी बढ़ा रहा होता है फ्रॉम द फॉलिकल्स, तो इसलिए इसके साथ एंडोमेट्रियल थिकनेस की बेहतर जो है वो इसमें शेप आ जाती है। तो उस सूरत में फिर लेजरा शुड बी द फर्स्ट चॉइस। अगर एक साइकिल देने से भी आपको अंदाजा हो गया कि ये फॉलिकल साइज और एंडोमेट्रियल थिकनेस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड लेवल,
अगर लड़का जो है वो एक एक्सपेंसिव ड्रग है, एक फॉर्म आपके पास पब्लिक हॉस्पिटल में पेशेंट आता है जिसका कॉम्प्लेक्स इसका रिस्क भी कम होता है इसके अंदर। बेटा आपका ये माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है। डॉक्टर स्टॉप करें। हाँ जी मैम, लास्ट क्वेश्चन मैम, ये पूछना है कि अगर पेशेंट के आप 3 टर्म आपके नॉर्मल डिलीवरीज हो जाए और उसके बाद 4 रिकरेंट मिसकैरेजेस हो, तो भी हम मैम उसको, इस पेशेंट को इसमें रखेंगे केस में, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में? डेफिनेटली रखेंगे। देखो एक प्री टर्म लेबर जो है वो बेसिकली ये बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आएगा। एबॉर्शन और प्री टर्म लेबर का जेस्टेशनल टाइम पीरियड फर्क होता है, तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में आएगा, रिकरेंट एबॉर्शन में नहीं आएगा। जी 4 टर्म डिलीवरीज हुई हो और उसके बाद 4 रिकरेंट मिसकैरेजेस हो चुके हो, पहले मैडम उसके पहले टर्म लॉसेस हो गए ना। अगर पहले टर्म डिलीवरी है और उसके बाद उसके प्री टर्म है और उसके बाद फिर रिकरेंट एबॉर्शन हैं, तो भी ये रिकरेंट। देखो 3 एबॉर्शन अगर हो गए, बाद दफा तो ये 2 के बाद भी लेबल कर दिया जाता है, 2 या 3 अगर हो गए तो ये रिकरेंट एबॉर्शन में आ जाएगा। और अगर ये रिकरेंट प्री टर्म डिलीवरी हैं तो ये इस तरह से रिकरेंट टर्म डिलीवरी में आएगा। रिकरेंट एबॉर्शन में एबॉर्शन कर दें। चलें जी, मेरा ख्याल है अब इस पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। ओके।